निराशाओं को आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को आशाओं का ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन ये कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन, विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। ए आज के दिन धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा इसलिए। तो योग्य है, तो महान है प्रभु। तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। Father, we want to thank you, O God, for this beautiful morning. For you are worthy, O God, and there is none like you, O God. Thank you, Lord, for this time, O God. Thank you, Jesus. I see you in the sunrise every morning. It's like a picture that you painted for me. A love letter in the sky. Stories
that you are faithful and true. Nobody loves me like you. Mountain, you're breaking down the weight of all my mountains. And even when it feels like I'm surrounded, you never leave my side. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. That you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. That you are faithful and true. Nobody loves me like you. Know what a song to sing. Know what a song to sing. Know what a song to sing. Know what a song. Oh, what a song to sing. Oh, what a song. Oh, what a song
came down from heaven to restore my life, to give me a brand new life, Father. Like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. Nobody loves me like you love me, Jesus. I stand in awe of your amazing ways. I worship you as long as I am breathing. God, you are faithful and true. Nobody loves me like you. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean steep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Oh. Spirit, lead me where my trust
Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. God, we want to thank you, Lord, for you are mine, and I am yours, O God. There is nothing in this world can never satisfy me than you, O God. Lord, your presence is all I need. Your presence is all I need in my life, O God. Thank you, Lord, for this song. And you
साथ स्तुति गाऊंगा कि यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूर मुझे, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु सुबह के समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उपकारों के लिए,
धन्यवाद प्रभु कि तूने मांगने से ज़्यादा हमें दिया, इसलिए इस सुबह के समय प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। जो कुछ आपने हमें दिया है इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु क्योंकि तू योग्य है। Father, we want to thank you for this beautiful morning that you've given us. Lord, we want to give our praises to you, O God. Lord, let our praises exalt your name, O God. Father, we want to thank you for this beautiful day. In Jesus' almighty name we pray, O God. Amen. गुड मॉर्निंग कलीसिया, सुप्रभात। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आशा करता हूं कि आप आराधना के समय में अच्छा आराधना का आनंद उठाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और जैसे कि हमें आराधना का टीम का भी धन्यवाद करता हूं, हमें अच्छी तरह यीशु मसीह की स्तुति आराधना करने के लिए हमें उस आराधना के भवन में लेकर गए और उसका आप अधिक आनंद उठाया, ऐसी आशा करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं 75वां साल हम हमारा आज़ादी का मना रहे हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम आज़ादी के बाद में आज 75 साल तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें एक बात जान लेना है, 2000 साल के पहले यीशु मसीह हमें आत्मिक में आज़ादी दिया है और आज हम 75वां साल खुशी से मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह तब से आज तक आप और हमारे साथ में था। हाय दोस्तों, हमारे जो फेथ कम्युनिटी चर्च जो है अलग अलग पद के ऊपर हमारे विश्वासियों को अगुवाई करती है, ट्रेनिंग देती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको परमेश्वर के नज़दीक जाने के लिए, चाहे वो आराधना करनी हो या प्रार्थना करनी हो या बाइबल पढ़नी हो या बाइबल ट्रेनिंग करनी हो या कोई भी आत्मिक या मीडिया में जो भी आप जुड़ सकते हैं, आप जुड़कर उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात करते हैं, हमारी जो सोमवार को जो होती है हमारे अगुओं की ट्रेनिंग्स होती है सोमवार को, और उसमें आप जुड़ जाइए। और मध्य रात्रि की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में भी आप, आशा करता हूँ कि आप जुड़ रहे हैं उसमें। हमारे स्त्रियों की सभा चलाई जाती है और हर स्त्रियों को मैं अगुवाई करना चाहूँगी आप उसमें भी जुड़ जाइए ताकि आप अधिक परमेश्वर में बढ़ने पाए। और उसी तरह शुक्रवार को जो होती है 6:30 बजे उपवास प्रार्थना इसी हॉल में होती है। बहुत सारे लोग आते हैं और आशा करता हूँ आप ऑफलाइन भी आना चाहेंगे और ऑनलाइन भी आना चाहेंगे, आप सभी का आमंत्रित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ इन पूरे हफ्ते भर की आत्मिक आराधनालय में आप जुड़कर परमेश्वर से बहुत ताज से आशीष पा सकते हैं और आपके आत्मिक अगुवे हैं उनसे भी आप जुड़कर रह सकते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि स्तुति आराधना करना एक कितनी अच्छी बात है और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हमारी 10वां अंश हम जब तक उसको नहीं देंगे, नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हमारी स्तुति आराधना जो है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं। और ये समय है परमेश्वर को हमारा 10वां अंश सौंप कर उस स्तुति आराधना का भाग जो है उसकी शरण में सौंपना। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरह बैग आपके सामने ही जा रहा है, आइए हम सब अपने भेंटों को चढ़ाएं। आशा करता हूं
स्तुति आराधना और परमेश्वर को भेंट चढ़ाकर आप बहुत अनुभव पाए हैं और आप बेताबले होकर इंतजार कर रहे होंगे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए उत्साहित के साथ में हम ताली बजाकर हमारे पास्टर जी का हार्दिक स्वागत करेंगे कि वो आए और हमें परमेश्वर के वचन में ले जाए। आइए हम सब ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। तो गुड मॉर्निंग कलेशिया, इतना समय हम अच्छा आराधना में लेके गया वर्शिप टीम के लिए हम धन्यवाद देंगे प्रभु के नाम से। तो बहन और भाई, आज का मेरा मुद्दा है परमेश्वर हमारा पास रहता है, देवरु नम्म हत्तिर इरुवनु। तो ये मुद्दा है। हम वो देखने से पहले हम देखते हैं आज का दिन आज़ादी का दिन है। हमारा देश को 75 ईयर्स हो गया आज़ादी मिलके। हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल रोमन्स में बताती है और गलातिया पुस्तक में बताती है 5 ಅಧ್ಯಾಯ 13 ವಚನ में, ಸಹೋದರರೇ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನು, ಆದರೆ ನಿಮಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಶರೀರ ಅಧೀನರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಪವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ। परमेश्वर का वचन ये बताती है हमको परमेश्वर ने बुलाया, ऑलरेडी आज़ादी कर दिया। हमको पाप से आज़ादी किया, दुख से आज़ादी किया और हर एक मुसीबत में हमको आज़ादी किया है। हम पाप में फंसे हुए तो भी परमेश्वर हमको क्षमा कर कर आज़ादी किया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन में आशीष किया। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ 75 ईयर्स हो गया आज़ादी मिलके, लेकिन आज यीशु मसीह में हम बनकर आज़ादी पाए हैं और प्रभु के राज के लिए हम खड़े हो सके। तो आज का मेरा मुद्दा है परमेश्वर हमारा पास रहता है। तो हम बाइबल में देखते, बाइबल ये बताती है परमेश्वर हमारा पास रहना है तो हम क्या करना, वो महत्व बात है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा पास आओ, परमेश्वर मेरा पास आओ, लेकिन परमेश्वर मेरा पास रहना है, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? परमेश्वर हमारा पास रहना है तो हम क्या करना है? बाइबल में हम देखते भजन संगीता 119, 119, 151 में हम देखते बाइबल ये बताती है, ಯೋವನೇ ನೀನು ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ। बाइबल ये बताती है परमेश्वर अधिक मेरा निकट है और परमेश्वर मेरा निकट रहना चाहता है तो हम परमेश्वर के पास आना जरूरी है। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे लोग आज का दिन परमेश्वर से दूर गए। परमेश्वर हमारा निकट आना चाहता है तो हम परमेश्वर को बुलाना और उसका आज्ञा में हम जुड़ना और कभी भी हम दूर नहीं होना। बहन और भाई, परमेश्वर के पास आकर हम जो भी मांगते वो हमको देने वाला परमेश्वर है। हम इधर देखते देವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು। परमेश्वर हमारा निकट होना चाहिए तो हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में देखते परमेश्वर ऐसा ही हमारा निकट नहीं होगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? हम प्रार्थना करना है। क्यों करना है? जब भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर अधिक हमारा निकट आते और हमको हर एक दुख दर्द से दूर कर कर अच्छा जीवन देते। बहन और भाई, आज का दिन हम देखते परमेश्वर हमारे पास रहना है, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತವಾಗಿ। और हम बाइबल में बहुत जगह में हम देखते परमेश्वर हमारे निकट आना है तो हम परमेश्वर के पास आना चाहिए। बहन और भाई, आपको मैं यही बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग आज का दिन परमेश्वर से दूर हो गए, पाप में फंसे हुए, लेकिन हम धन्य है। क्यों? हम परमेश्वर के निकट है। उसके लिए हमको परमेश्वर ने हर एक मुसीबत घड़ी में परमेश्वर हमको ऊपर उठाना जाता है। बहन और भाई, हम देखते व्यवस्था विवरण में हम बाइबल में देखते 4 ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಚನ में, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೋನನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ। हालेलुया। हम इधर देखते व्यवस्था विवरण में हम बाइबल में देखते हम परमेश्वर के पास आकर ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ, परमेश्वर के पास आकर हम जो भी मांगते हैं ना वो हमारा निकट रहता है।
बहुत लोग मांगते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इतना साल से परमेश्वर के पास आया हूं और अधिक गया हूं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल इधे और बताता है, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿವರಣೆ में ये बताते, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೋನನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ। कितना नजदीक निकट परमेश्वर मेरा पास आना चाहिए। तो बहन और भाई अपने हृदय परमेश्वर के लिए देना है, और आप जो भी गलती किया है, पाप किया है, पश्चाताप करना है और कबूल कर कर आप जब भी परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा। मैं आप जो भी जुड़े बहन भाई को मैं बताना चाहता हूं, पहला ही बात बोला, परमेश्वर के पास हम आना चाहिए तो शुद्ध मन से आना चाहिए और परमेश्वर के सामने कबूल करना चाहिए अपने पाप को, और परमेश्वर को बोलना चाहिए, क्यों प्रभु मैं आपके पास आया है, मेरे जीवन में मैं पुकार रहा हूं, मेरे पुकार सुन। और परमेश्वर ने आपका पुकार सुनकर जवाब देगा। बहुत लोग आए गए, परमेश्वर के पास आकर दूर गए, नष्ट हो गए, लेकिन हम आए हैं, हम परमेश्वर के निकट रहेगा और अधिक परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करेगा। इधर बोलता है, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಯಾವ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಸಮೀಪವಾಗದು। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी घटी हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरा निकट रहने के लिए तैयार है। ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ। ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन परमेश्वर के पास हम अधिक निकट रहेगा, हमारा हर एक तकलीफ दुख दर्द जाएगा, हमारे जीवन में महान आशीष आएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे आज का दिन बहन और भाई परमेश्वर के पास आते नहीं। क्यों? पाप में फंसे हुए। उसके लिए आज का बाइबल ये बताती है, हम व्यवस्था विवरण में देखा, हम बाइबल ये बताते हैं, ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯೋನನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ। जो उसको पुकारते हैं ना, अपने पाप को कबूल करते हैं ना, जो पश्चाताप करते हैं ना, जो भी उसके पास आकर मांगते हैं ना, उसके निकट परमेश्वर रहेगा। तो थोड़ा लोग बोलते हैं मैं मांगूंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे को ऐसा मिलेगा। नहीं मिलने वाला। बाइबल सच बताती है, परमेश्वर के निकट आकर पुकारते हैं, उसके जीवन में एक आशीष आती है। जब भी पुकारने वाले को दुख जाएगा, पाप से दूर हो जाएगा, बीमारी चली जाएगी और जीवन में शांति आएगी, और भरी आपके जीवन में बहुत सारे बोझ रहेगा, वो बोझ से परमेश्वर आपको बाहर निकल कर लेके आएगा। व्यवस्था विवरण में बोलते कितने भी बड़ी भी आपके जीवन में घटी हो, लेकिन परमेश्वर आपका अधिक निकट रहने वाला है। हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे। हम कन्नड़ में बहुत अच्छा बताते हैं, देವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು। और हिंदी में हम देखते परमेश्वर हमारा पास आना चाहिए तो हम खुद परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हम जाएंगे तो परमेश्वर आएगा ना। थोड़ा लोग बोलते हैं बर्री कोडरी कैसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के पास हम आना चाहिए तो हम खुद परमेश्वर के पास जाना चाहिए। जब भी परमेश्वर हमारे पास आएगा, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम बाइबल में देखते याकूब का 4 अध्याय 8 वचन में, जेम्स चैप्टर 4:8, उसमें लिखा है, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಆಗಲ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವನು। ಪಾಪಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಎರಡು ಮನುಷ್ಯುಳ್ಳವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು निर्मल ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ। इधर बाइबल में लिखा है, याकूब का 4 अध्याय 8 वचन में परमेश्वर का वचन ये बताते हैं, आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपका निकट आएगा। पापी अपने हाथ को शुद्ध करो। आप पाप किया है, शायद गलती किया है, अपने मन शुद्ध करो। देखो मेरा हाथ है, ये हाथ शुद्ध रहेगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। बहन मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं,
ಬೈಬಲ್ में ये लिखा है ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆಗಲಾತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಬನು परमेश्वर के पास अधिक निकट आओ तो परमेश्वर आपके पास आएगा परमेश्वर के पास नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा दे दो कैसा हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला बहन और भाई मैं आपको बताना चाहूँ तो एक लोग का दो मन रहता है एक साइड वो साइड जाता है एक साइड वो जाता है ये साइड जाता है कर्नाटक में मैं था जब भी मैं बहुत उदास था मैं बहुत कुछ पैसा मेरे पास था सब कुछ था लेकिन घर छोड़ के मैं गया पाप में फंस गया जब मैं बेंगलुरु में था बहुत सारे मुसीबत आए मेरे पास सब पैसा था सब कुछ था लेकिन पाप में फंसने के बाद गिरने के बाद कितना दोस्त थे सब दोस्त हाथ छोड़ दिया सब लोग हाथ छोड़ दिया अरे इतना बड़ी मुसीबत में मैं गिर गया और वो सिचुएशन में मेरे को 99 में यीशु मसीह मेरे जीवन में आया यीशु मसीह को मैं अपनाया उसका निकट आया वही यीशु मसीह ने मेरे को बदलाव किया शायद मैं वह समय में यीशु के पास नहीं आता था तो मैं मर कर कितना दिन हो जाते थे बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ आप पहला परमेश्वर के पास आना चाहिए जब भी निकट रहना चाहिए जब भी परमेश्वर आपको पापिಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ पापी लोग अपने हृदय को शुद्ध कर लो कोई लोग पाप में ही रहते हैं मैं उधर से आऊंगा ही नहीं करके वो लोग के मन में सोचते रहते हैं लेकिन बाइबल क्या बोलता है यीशु मसीह ने पापी लोग के लिए आया यीशु मसीह ने पापी लोग को छुड़ाने के लिए आया यीशु मसीह ने जो उसके अधिक निकट रहता है उसको छुटकारा देकर ऊपर उठाने के लिए आया बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी परमेश्वर के पास निकट आता है उसके पास परमेश्वर आएगा वो जो भी सच्चाई में चलते हैं और अधिक परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा मैं सच बताना चाहता हूं बाइबल में ये बोलता है केलोरू बहुत लोग ऐसा आता है परमेश्वर के पास क्रिसमस के लिए और नया साल के लिए आता है साल में एक ही बार आएगा वो पूरा साल पांव भार रहता है वो लोग का और साल में एक बार आएगा 12 महीना हो गया साल में एक बार आकर वो बोलता है एक साल का पूरा परमेश्वर मेरे को दे दो कैसा देगा ऐसा लोग है क्रिसमस न्यू ईयर के लिए एक ही साल में एक ही बार आएगा और पांव रखेगा खुदा पूरा साल का एक ही बार दे दो मैं आपका पास आया हूं निकट आया हूं कैसा देगा बहन और भाई बाइबल बोलता है याकूब के पुस्तक में बोलता है आप कितना ज्यादा परमेश्वर के निकट रहेगा आप कितना भी बड़ी घटी हो दुख हो दर्द हो आप पाप में आप फंसे हो आपका हाथ शुद्ध नहीं है लेकिन परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा बहन और भाई साल में एक बार हम आने वाला नहीं होना चाहिए कोई लोग मैं चर्च को गया नहीं है तो 6 महीना में साल में एक बार मैं जाकर पास्टर को मिल के आऊं तो हाँ मैं गया करके सोचा रहेगा वो नहीं है पास्टर के लिए उसके लिए नहीं आते हम प्रभु के लिए आते हैं प्रभु ने हमको चुना है प्रभु ने हमको बुलाया है सही रास्ता में चलने के लिए बहन और भाई याद रखो और बाइबल में हम देखते बाइबल ये बताते 2 मन रखकर आओ मत अपने मन परमेश्वर के पास दे दो अपने स्टेप जब भी रखते हैं ना परमेश्वर आपका हर एक दुख दर्द जाएगा पाप में फंसे हुए रहेगा लेकिन परमेश्वर के निकट आप आएगा परमेश्वर याकूब में देखा अपने हाथ शुद्ध कर लो बोलता है शायद मेरा हाथ शुद्ध नहीं है परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा यशाया चैप्टर 55:6 यशाया बರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 55:6 उसमें वो वचन बोलता है ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಸಿಕ್ಕುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿರಿ हाँ इधर देखो यशाया का 55 अध्याय 6 वचन में लिखा है परमेश्वर आपको मिला है वो समय में उसके पास मजबूत आप निकट रहना चाहिए प्रभु मिला प्रभु आपका पाप क्षमा किया आप बैप्टिज्म लिया यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया फिर भी आप उसके साथ जुड़ कर रहेगा तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा कोई लोग बोलते हैं क्या करूं पास्टर मैं जाता हूं कलेशिया में ಏನು ಮಾಡಲಿರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಏನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ
ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ मैं प्रभु ने जो भी है सबको दे दिया कभी एक बार जाऊं नहीं। बाइबल ये बताती है कितना ज़्यादा हम परमेश्वर के निकट रहते हैं इतना ज़्यादा परमेश्वर हमको आशीष करेगा। ಯೆಶಾಯ 50:5 अध्याय में यो ನನ್ನ ಸಿಕ್ಕುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ। परमेश्वर आपको मिल गया ना, वो दिन से आपके जीवन में अद्भुत कार्य महा चमत्कार हो जाएगा। जब भी मिला है उससे दूर नहीं होना चाहिए। जब भी दूर होएंगे शैतान देखते रहता है, उसको कभी नीचे गिराओ, उसको कभी खड्डा में उड़ाओ, उसको कभी परेशानी में डालो। शैतान का काम वही है। तो परमेश्वर हक के हम निकट हम रहेंगे, शैतान हमको कभी भी हमको हमला नहीं कर सकते। क्यों? हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर हमारा साथ हमेशा रहना जाता है। तो बोलते हैं ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು बिन्ह ಮಾಡಿರಿ। आपके नजदीक वो निकट रहता है तो उसके पास आकर दुआ करो, रो, पश्चाताप करो, परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। खुदा मैं गलती किया हूं। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, कितने बड़े 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 लोग गिर गया, हमारा परमेश्वर ही परफेक्ट है। बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं हम कोई परफेक्ट नहीं, हम कभी कभी चूक जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कभी चुकता नहीं। जो उसके मुंह से आया है वो हमेशा के लिए खाली हाथ से नहीं जाएगा, आशीर्वाद लेके आएगा। यशाया के पुस्तक में बोलता है वो सिಕ್ಕುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, वो मिल जाएगा। उस समय में उससे दूर नहीं होना, उसका नजदीक आप रहेंगे, निकट रहेंगे, आपके जीवन में बहुतारी से आशीष आएगा। मैं ऐसा ही था, यीशु मसीह ने मिला 99 में, अभी सब कुछ दे दिया, 2003 में अच्छा जीवन दिया, सब दिया, अभी क्यों जाने का यीशु के पास, ऐसा सोचा, छट करके और मैं नीचे गिर गया। बाद में मेरे को पता चला प्रभु आप जो भी मेरे जीवन में उपकार किया है कभी मैं नहीं भूल पाता हूँ, आप महान परमेश्वर है। बहुत सारे मेरे दोस्त थे, बहुत दोस्त थे, सब दोस्त भी गया, लेकिन यीशु मसीह मेरा साथ हमेशा के लिए है। बहनों और भाई बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, थोड़ा दिन के लिए रहेंगे, वो चले जाएंगे, लेकिन आपके साथ रहने वाला महान प्रभु है, उसका निकट रहेगा, आपके जीवन में महान कार्य करेगा, कभी भी आप भूलना नहीं चाहिए। तीसरा बात देखेंगे, तीसरा बात हम देखते हैं ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ। यीशु के लव के कारण हम परमेश्वर के पास है। हालेलुया। देखो यीशु मसीह के लव के कारण हम परमेश्वर के पास है। ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ। अभी हम देखते बाइबल में, बाइबल यही बताती है यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, सब लोग के लिए ये संसार में आया, पवित्र लव पाया और तीसरा दिन जी उठा, उसके लव से द्वारा हम नजदीक है। बाइबल में हम देखते एफेसियों का 2 अध्याय 13 वचन, हम ऐसा लिखा है, ಹೀಗಲಾದರೂ ಮೊದಲು ದೂರವಾಗಿದ್ದಿರಿ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯೇಸುವನ್ನು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದು ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಿರಲ್ಲ। हालेलुया। पहले हम दूर थे, अभी हम प्रभु के पास आया, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ। उसके लव से, यीशु के लव से कारण हम परमेश्वर के पास आए। हमारे लिए उसने कितना बड़ा त्याग किया, हमारे लिए उसने कितने कितने बड़ा चाटी पड़ी, हमारे लिए उसका शरीर घायल हो गया। बहन और भाई प्रभु के लिए जीने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला को कभी भी कुछ कम नहीं। हमारा पास्टर वो दिन बता रहा था, आगे का दिन कैसा होगा हम नहीं जानते। ये महामारी आया, बहुत बड़े बड़े कलेशा रुक गया, बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्ट्री रुक गया, आने वाला दिन क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु का काम कभी भी नहीं रुकने वाला। जो भी उसका निकट है उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। तो हम एफेसियंस चैप्टर 2:13 में 2:13 में हम देख लेते हैं, ಮೊದಲು ನೀವು दूर, पहले हम दूर थे, पाप में थे, दुख में थे, दर्द में थे, अभी यीशु के लव से द्वारा हम नजदीक आ गए। उसके लव हमको, हमारा पाप को धोया, हमको आजादी दिया, हमारे जीवन में शुद्ध किया। तो बहन और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ।
हम उसके लिए तो जीना है। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर लव आया, तीसरा दिन जी उठा, अभी भी वो जिंदा है। बहुत लोग आया गया, लेकिन हमारा यीशु मसीह आने वाला है, वो जरूर आने वाला है। तो हम तैयार रहना चाहिए, उसका निकट रहना चाहिए। बहन और भाई, एफएसएस पुस्तक में हम देखता उसके लव से, पर यीशु के लव के कारण हम परमेश्वर के पास आए। क्यों? हमारे लिए वो कितना बड़ा त्याग किया। तो बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला निश्चय ले लो, अपने हृदय परमेश्वर के लिए दे दो, और परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करेगा। देखो, एक आदमी चिकन, मुर्गी का बहुत बड़ा गोदाम में मुर्गी पाला, बहुत मेहनत करता है वो। मुर्गी अंडा देती है, और बहुत बड़ा गोदाम में मुर्गी ये किया। थोड़ा दिन होने के बाद, अच्छा चल रहा था, थोड़ा दिन होने के बाद नष्ट हो गया, सब कुछ हो गया। बाद में मुर्गी सब भेज दिया। अभी मुर्गी भेज दिया तो चिकन भेज दिया तो क्या करते? चिकन बिरयानी करते हैं, नहीं तो पका के खाते। सब भेज दिया, नष्ट हो गया, और उदास हो गया, पूरा उदास हो गया। मैं ये काम तो किया है, सब बहुत नष्ट हो गया, अभी क्या करूं? तो कोई एक भाई आया, उसको बोला, आप बहुत मेहनत किया है, सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन एक भाई ने उसको रास्ते पर जा रहा था तो मिला, और उसको बोला, आप यीशु को प्यार करो, इसको पढ़ो, आपके जीवन में आशीष आएगा। बाद में उसने, मैं ये किया तो हो जाएगा क्या? तो उसको नंबर लिखा, सब लिखा, उसके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। बाद में थोड़े देर हुआ, 1 महीना 2 महीना हुआ, यीशु मसीह के पास उसने यीशु को स्वीकार किया। यीशु मसीह ने उसके जीवन में भलाई काम किया, और वो बहुत ऊपर उठ के आया, और कुछ काम नहीं किया, प्रभु ने उसको बहुतायत से आशीष किया। ऐसा है बहन और भाई, आप जो भी करते हैं, पहला स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर काम शुरुआत किया तो कुछ रुकने वाला नहीं है। तो पहले 1 जॉन चैप्टर 1:9, पहला యోహాನ 1:9 में हम देखते हैं, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನೀತಿವಂತನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು अपहरिಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವನು। हालेलुया। इधर हम देखते हैं यूहन्ना पुस्तक में 1 अध्याय में हम देखते हैं, हमारा पाप, हम जो भी पाप करते हैं ना, हम खुद कबूल करना चाहिए। हमको मालूम रहता है हम क्या करते हैं, हम कबूल कर कर विश्वास करते, पश्चाताप करते, और प्रभु ने हमको क्षमा करते हैं। परमेश्वर के पास निकट आकर करेगा तो हो जाएगा। ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತು। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು। ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನೀತಿವಂತನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು, आपको आशीष करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो भी करते हो पाप से बाहर आने के लिए कोशिश करना है। बाहर आकर परमेश्वर के निकट आएगा, पश्चाताप करेगा, परमेश्वर के पास भरोसा रखकर मांगते हो, जरूर यीशु मसीह ने आपको मन को शुद्ध करेगा, और आपके जीवन में एक महान कार्य हो जाएगा। बहन और भाई, आज हम देखते दुनिया बहुत बड़े बड़े टेक्निकल आया आज का दिन दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोग उदास हो गए। लेकिन हम अच्छे हैं, क्यों? प्रभु का दया हमारे ऊपर है। परमेश्वर के साथ आए करके हम ऐसा बचे। परमेश्वर के साथ हम जुड़कर नहीं रहते, निकट नहीं रहते, सब कुछ व्यर्थ। वो क्या बोला? क्षमिಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವೆನು। हमको कौन क्षमा करेगा? हमारा प्रभु क्षमा करेगा। यीशु मसीह ने आपको क्षमा करेगा, आपको पाप को क्षमा करेगा, आपको ऊपर उठाकर लेके आएगा। आप निकट आया तो, निकट नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला। वही जगह वही स्थिति। बहुत लोग आए गए, थोड़ा लोग चमत्कार के लिए आते यीशु के पास निकट, थोड़ा लोग चंगाई के लिए आते, थोड़ा लोग कुछ मेरा काम बिजनेस बढ़ गया तो बस उसके लिए आते, उसके लिए नहीं आना। यीशु मसीह ने हमको बुलाया है,
उसका योजना हमारे जीवन में पूरा होने तक उसके आज्ञा में मजबूत जुड़ कर रहना चाहिए बहन और भाई। जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर ये बोलता है तीसरा बात में, हम यीशु के लव के कारण हम परमेश्वर के पास है। यीशु ने हमारे लिए, उसने हमारा पापों के लिए लव बाया, तीसरा दिन झूठा। एफेसस में हम देखा, एफेसियों पुस्तक में। तो बहन और भाई, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम उसके पास कभी भी निकट रहेंगे, हमको कुछ कम नहीं होगा, कुछ प्यास नहीं होगा। हमेशा परमेश्वर हमारा पास रहकर चलाना जाता है। तो अभी लास्ट पॉइंट बोलकर मैं खत्म करता हूं। अभी चौथा पॉइंट में हम जाएंगे। ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವನು। हम इधर देखते, जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारा पास रहता है। हालेलुया। हम देखा कभी रहता है परमेश्वर, जब भी हम भक्ति परमेश्वर का स्तोत्र गाते आराधना करते, जब भी हमारा निकट परमेश्वर आता है, उसका उपस्थिति उतर कर आती है। थोड़ा लोग बोलते हैं, ನಾನು ವಚನ ಓದೋದಿಲ್ರಿ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ, कुछ नहीं, ಏನು ಮಾಡೋದು, कुछ नहीं करूँगा और परमेश्वर निकट आएगा। तो नहीं, ऐसा निकट नहीं। हम इधर देखते, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವನು। हम इधर देखते, जब हम आराधना करते परमेश्वर हमारा पास आता है। हालेलुया। तो हम इधर देखे, परमेश्वर जब भी हम आराधना हृदय से आराधना करते, भक्ति करते, तो हमारा निकट परमेश्वर रहेगा। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल ये बताती है, भजन संगीता 30:4 अध्याय 1 वचन, साम्स 34:1 में, ನಾನು ಯೋನನ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು। हालेलुया। कितना अच्छा बोला कन्नड़ में। हम हमेशा परमेश्वर का भक्ति आराधना करना हमारा मुंह में हमेशा रहना चाहिए। बोलता है कभी करते, हम करते ही नहीं। कोई लोग बोलते हैं संडे जाएगा तो हम आराधना करेगा, बस परमेश्वर मेरे निकट आएगा। घर में तो किया, नहीं किया, ऐसा नहीं है बहन और भाई। बाइबल ये बताती है, हम यड़ा बिड़ा दे, वो बोलता है बिना थक के आप परमेश्वर के पास आकर हमेशा आपके मुंह में उसका भक्ति रहेगा, आपके निकट परमेश्वर आएगा। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन बहुत सारे लोग सच जानकर भी गिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है, हमको बुलाया है सही रास्ता में लेके जाने के लिए। तो इधर हम देखते, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವನು। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारा पास रहता है। तो बहन और भाई, हम देखा भजन संगीता 30:4 अध्याय और 1 वचन में, ನಾನು ಯೋನನಿಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, हमेशा के लिए, बिना थक के। कितना गाना गाया, कितना घंटा आराधना किया, वो मतलब नहीं। आपका और परमेश्वर के बीच में आपका रिश्ता जुड़कर हृदय से आप जब भी आत्मा से गाते हो, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। वही समय में आपको छुटकारा हो जाएगा, वही समय में परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हर एक सिचुएशन में जो भी आप ये करते हो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, प्रभु आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मैं मुंह खोलता हूँ, मेरे जीवन में एक आशीष कर दे। जब भी आप बोलते हो, जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। कितना लोग विश्वास करते हो? जब भी आप, मैं कर्नाटक में था, एक गाना मेरे को बहुत लाइक, ಹೆದರದಿರು ನನ್ನ ಮನವೇ, वेंकटेश पास्टर करके लिखा है, बहुत अच्छा गाना। दूसरे के घर में वो पहला छोटा छोटा ऑडियो कैसेट था, अभी तो मोबाइल में मिलता है, अभी सीडी है, पहला ऐसा सीडी कुछ नहीं था, ऐसे छोटा छोटा टेप में डालकर सुनने वाला कैसेट था। ये घर में बहन के हेमावा का घर में डाला था, दूर से सुनता था, ಹೆದರದಿರು ನನ್ನ ಮನವೇ ನಾನು, तो वो गाना सुनता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मैं सुन के रोता था कभी, प्रभु आपका गाने कितने अच्छा है। जब भी आपका भक्ति करते, जब भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। तो बहन और भाई, आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप परमेश्वर के पास जब भी आराधना करते हो,
परमेश्वर हृदय से करते हो, परमेश्वर हमेशा आपका निकट रहेगा। और एक वचन देखेंगे बाइबल में, हम देखते भजन संगीता 102 ಯೋನನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, ಉಸ್ತಾಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ। हालेलुया। भजन संगीता 100 में क्या लिखा, 2 में वो ये बोलता है, ಯೋನನನ್ನು संतोषದಿಂದ, खुशी से, महाशब्द से, आवाज से परमेश्वर को जय घोषण करो और उसके अंग में आओ, तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होता है। बहन और भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। तो पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन और भाई, सबसे बेस्ट हम परमेश्वर को सिर्फ आराधना हम देते हैं। आराधना के हृदय के साथ हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर कुछ कम नहीं करेगा, हमेशा हमारे जीवन में कार्य करेगा। इधर हम देखते हैं बाइबल में बताता है, तो बहन और भाई, आप ಯೋನನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ, खुशी से, आनंद से, ऐसा रो के जैसा। कोई लोग ऐसा खड़े हो जाते, क्यों? वो लोग का मुंह देखा तो क्या हो गया, कोई मारा क्या, कुछ बड़ा घातक किया का, ऐसा दिखते नहीं। लेकिन भजन संगीता 100 में ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸಿರಿ, महाध्वनि, आवाज से रो, पश्चाताप करो और उसका भक्ति करो। उसके भक्ति में परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। कितना नजदीक आप आते हो, इतना ज़्यादा। हम देखा, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವನು। हम गाना गाते, हम कितना बहुत सारे गाना गाते, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರೇನು, मेरा साथ रहने वाला परमेश्वर, आपको छोड़कर मैं कुछ नहीं करता हूँ। हम गाते, बहन और गाए, हमारा हमेशा हमारा साथ रहकर चलाने वाला परमेश्वर वही है। तो मैं आपको ये 4 पॉइंट बताकर मैं ख़त्म करता हूँ। तो पहला बात हम देखा, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವನು, परमेश्वर हमारा पास रहता है, पहला हम देखा। दूसरा बात हम देखते, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು। हम दूसरा बात देखा, परमेश्वर हमारा पास आना चाहिए तो हम खुद परमेश्वर के पास जाना चाहिए। हम तीसरा बात देखा, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೀವಿ, यीशु के लव के कारण हम परमेश्वर के पास है। हम चौथा बात देखा, हम देखते बाइबल में, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವನು। हम देखते, जब हम आराधना करते परमेश्वर हमारा पास रहता है। तो इतना बोलकर ख़त्म करता हूँ। जो भी बहन और भाई, जो भी आप ऑनलाइन में ऑफलाइन जो भी जुड़े हैं, आपको सबको मैं बताना चाहता हूँ, अपने हृदय परमेश्वर के पास दे दो। आप परमेश्वर के पास कितना निकट आते हो, इतना ज़्यादा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तो हम सब लोग आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते राजा ये समय के लिए, प्रभु आपके चरणों में आकर प्रार्थना करते, जो भी बहन और भाई जुड़े प्रार्थना करते राजा, कोई दुख में हो, दर्द में हो, चिंता में हो, तकलीफ में हो, पाप में हो, फंसे होए तो भी छुटकारा दे दो। बाइबल में हम देखा, आपका कितना निकट नज़दीक रहते हैं प्रभु, इतना ज़्यादा आप आशीष करने वाला, अद्भुत करने वाला परमेश्वर। जो भी बहन और भाई, सब बहन भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी दुर्घटना न हो सके, तकलीफ ना आ सके, कुछ भी बीमारी है तो यीशु के नाम से निकाल देते परमेश्वर। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आप सत्य जीव है, मार्ग है, आपसे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। ये समय के लिए हम प्रार्थना करते, जो भी जुड़े सब बहन भाई को आशीष कर, आने वाला दिन एक आशीष का दिन हो जाए। दुख दर्द के समय में वो प्रभु आप वो लोग का हाथ पकड़कर चलाए, अधिक आपके निकट आए, और वो निकट आकर जो भी पुकारते प्रभु, वो लोग का प्रार्थना सुनकर जवाब दे दो, पाप से छुटकारा दे दो। और प्रभु वो लोग के जीवन में एक बड़े बड़े गवाही हो सके। पिता परमेश्वर, आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आप ही हमारा प्रभु है राजा। ये सुबह के समय के लिए हम विश्वास करते, हम ऑलरेडी देखा प्रभु 75 ईयर्स हो गया आज़ादी मिलके, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी आपके बच्चे हैं आज आपके बच्चे आपके चरणों में सौंपते प्रभु, वो लोग को पूरा तरीका से छुटकारा दे दो, अधिक आपका नज़दीक आ सके और आपका अनुभव पा सके और आपका आराधना कर सके
और नजदीक आप आ सके प्रभु। कभी भी शैतान के जाल में वो पड़ ना सके, शैतान के जाल में पड़ा हो तो भी यीशु के नाम से वो लोग को बाहर निकल कर लेके आ राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए, इतना अच्छा आराधना दिया, ये वचन दिया प्रभु। जो भी बहन और भाई जुड़े, सात बहन भाई को आशीष कर, आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो जाए। हर एक अंधकार शक्ति यीशु के नाम से निकाल देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं गोवा के भूमि में जो भी चुने हुए लोग प्रभु, जो भी आपके पास आते, कोई भी खाली हाथ से न जाए प्रभु। हर दिन हर समय वो लोग का हाथ पकड़कर चलाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा, हमारा प्रार्थना सुना। हर दिन हर समय वो लोग के साथ रहकर, निकट रहकर चलाएगा करके यीशु के पवित्र नाम से बोलते हैं प्रभु। आमेन आमेन।